अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ बहुत ज़्यादा ताख़ीर से वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात इस किस्म की थी। बहरहाल इस वक्त ये मैं आपको लेकर आई हूँ जबल अख्तर पे। मस्कत से तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे के डिस्टेंस पर जो है ये पहाड़ की चोटी है। ये वाक़ई है, इसे जबल अख्तर यानी कि ग्रीन माउंटेन कहते हैं क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अप्रैल के महीने में यहाँ पर रोज़ कल्टीवेशन होती है, गुलाब के फूलों की काश्त की जाती है, उसका अर्क निकाला जाता है और ये हरा भरा हो जाता है। इसके अलावा सितंबर के मौसम में यहाँ पर अनार जो हैं वो ख़ास किस्म के पैदा होते हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं अपने जायके के एतबार से। तो हमने सोचा कि हम आपको यहाँ पर सैर करवाएं। पहले भी मैंने शायद एक वीडियो पोस्ट की है इसके बारे में, लेकिन आज जो है वो हम अप्रैल के महीने में आए हैं ख़ास इसके सीज़न में देखने। तो आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर जो है ये अर्के गुलाब किस तरह निकालते हैं। यहाँ ये जो साहब ये काम करते हैं उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं कि यहाँ ये किस तरह से ये पूरा actually this is how we make the process how to make the rose water. And we put this inside 1, 2, 3, 4. Depends the family. Some families make it 2 only. Some families make 4 or 6. Okay. Depends. Then we put rose here 1 kilo. Okay. And we put up of the rose this it should be empty. And we cover it by this one. And it should be the water is cold. Water is only here, not inside. And the rose water how is coming by the sides. The steam is coming out and coming down for this empty. You collect the rose water inside this bowl. Fumes Yeah, okay. Every 3 hours we change it. Okay. Every 3 hours, and we got it half liter. So these days you are having roses here. Roses are blooming, still blooming. Yeah. But we can't see many roses, you know, on this hillside, you know. Only one kind of rose. We Okay. have local rose. Okay. Yeah, this one. This we need one. to go there. This one. Yeah. In that case. This is Omani rose. Oman. Yeah, local. Okay. Maybe another country I don't know. Yeah. But here is as this only. Pink. Okay. Yeah. Pink rose you Yeah, we have. call it local. Okay. Okay. That's good. That's good. This is a traditional method. It is before 200 years. This is 200 years old method. Yeah. Yeah, this My place is father also used to 200 make it like years. that. My grandfather. My father was a Actually, Okay. this house is for my grandfather Okay. before 200 years. Okay. Yeah. That's nice. That's nice. And this is Mashallah. before 200. And this is a new technique. Now you will show us the new technique of making This rose. is 1 kilo. We got it half liter Okay. every 3 Hours. hours. This we is called it arc. this is the new technique for making rose water. Yeah, and easy and fast for us. This Okay. is easy and fast. And we got it white rose water. This is That one one. is red. That one is for red rose and this And is this for is the white, white yeah. white rose. And we bought rose 4 kilos. And Ah. we got it 6 liters. So in this method you collect more quantity of rose water. More and fast, Fast. and easy for us. Ah. But still people ask about the tradition. Yeah. So is there any difference if you make rose water in that with that method or that? You can make it, depends the people. The people, some people like it, but more than is like that one. Okay, nice. This is the farms. These are the rose farms. Okay. तो ये तो था वो न्यू और ट्रेडिशनल टेक्निक जिससे जो है यहाँ पर रोज़ वाटर तैयार किया जाता है। अभी हम उसी ओल्ड हाउस में हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पर आप जो है वो देखते हैं एक पुराना सा घर है, गलियाँ हैं और ये वहाँ पर ये लोकेटेड है। और यहाँ पे 2 तरह के ये कहते हैं हम गुलाब जो है फूल उनसे अर्के गुलाब तैयार करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसे डायनाज़ व्यू पॉइंट कहते हैं। मैं उसकी पिक्चर्स आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। वहाँ लोग आते हैं, कहा जाता है कि किसी ज़माने में शायद 1980 की दहाई में लेडी डायना वहाँ आई थी और वहाँ से उन्होंने व्यू किया था माउंटेन को। तो यहाँ की ये कुछ ख़ास बातें हैं। और खाने पीने के यहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म के आपको मिल जाएंगे रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। हर तरह के हैं अवेलेबल, हर तरह का खाना मिल जाता है और उसी तरह नॉर्मल प्राइसेस में, कोई अलग प्राइसेस नहीं है।
लेकिन यहाँ आने के लिए जो बेहतरीन जो मौसम है वो या तो अप्रैल के महीने में आप आएँ, मार्च से अप्रैल, जब यहाँ पर गुलाब के फूलों की काश्त की जाती है, या सितंबर में अगर आपने यहाँ के ख़ास अनार खाने हैं। तो ये 2 माह हैं जिनमें आप विज़िट कर सकते हैं। वैसे जो है ये जबल अख्तर की जो पहाड़ है, इसकी ऊंचाई जो है वो 2980 मीटर है, और यहाँ का ये एक बहुत ही मशहूर जो है मारूफ़ मकाम है। मस्कत से निस्बतन करीब है, आप अपनी गाड़ी पर यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव की आपको ज़रूरत पड़ती है। पुलिस की जो एक पॉइंट बना हुआ है, चेक पॉइंट है, वहाँ से आगे आप 4 व्हील ड्राइव के बगैर नहीं जा सकते, तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त ये हम उस कमरे में हैं जहाँ पर इनकी एक छोटी सी शॉप है उसी हाउस में, जहाँ इन्होंने कुछ रोज़ वाटर जो है उसकी बॉटल्स फिल करके रखी हैं, कुछ पुराने बर्तन हैं, कुछ नए बर्तन हैं, और ये आप देख सकते हैं ये बॉटल्स वगैरह यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। छोटी सी शॉप है, और हमने भी यहाँ से एक बॉटल ली जो वाइट रोज़ वाटर था। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये कदीम घर है और छोटे छोटे इसके कमरे हैं, तंग सी राहदारियाँ हैं, दरवाज़े हैं, तो गुज़रना यहाँ से जो है वो इसी तरह से मुमकिन था कि हम झुक के जाते। इस कमरे में अब आप देख सकते हैं इन्होंने गुलाब के फूलों की पत्तियाँ जो है वो फैला के रखी हुई हैं कपड़े पे। जो गालिबन इनका तरीका है उसको पहले इस तरह से ये पत्तियों को अलग करते होंगे और फिर इससे जो है वो कशीद करते होंगे अर्के गुलाब। तो यहाँ जो है इस कमरे में आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये एक तरह से आप समझ लीजिए चूल्हा है या स्टोव है। इसी तरह ये वेट मशीन है, और ये इनके बर्तन हैं जिनमें ये कलेक्ट करते थे, जो एक कदीम तरीका, इसको प्रिजर्व किया हुआ है इन्होंने इस कमरे को। और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा ये घर है, और अच्छा इन्होंने इसको मेंटेन भी किया हुआ है। और यहाँ इस तरह आपको काफ़ी एक मतलब समझ लीजिए आप, अब घर तो ये नहीं रहा, ये एक फैक्ट्री बन चुकी है। और ये मतबख है, किचन है इनका, जहाँ पर जो है ये इस तरह से ये बनाते हैं, और किसी ज़माने में ये इस्तेमाल होता होगा। तो यहाँ इन्होंने पुराने बर्तन जो हैं उनको भी डिस्प्ले किया हुआ है। तो जनाब जो है इस घर का नाम है बैतुल शर्फ। आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ये आपको एक मस्ट विज़िट प्लेस है जबल अख्तर की, वहाँ आपको ये घर और ये फैक्ट्रियाँ ये नज़र आएंगी। इसके अलावा हम आपको दीगर इसके जो हिस्से हैं वो भी दिखाते हैं। ये ऊपर इसका एक टेरेस है, और ये अंदर जो है ये आप देख सकते हैं फिर छोटे छोटे कमरे। और ये देखें ये घर का नाम, इसकी तख्ती लगी हुई है। अच्छा, ये जो कमरा है इसमें कोई खिड़की नहीं है, इसको विंटर रूम ये कहते हैं। यहाँ सर्दी के मौसम में जो है ये बैठते होंगे। और यहाँ ये रोशनी जो आपको नज़र आ रही है ये किसी खिड़की से नहीं आ रही है, यहाँ पर लाइट लगी हुई है, तो ये बग़ैर खिड़की का कमरा है। और इसको सुफ़तुल शिता जो है ये कहते हैं। और अगर मेरा अरबी का एक्सेंट जो है वो सही है तो शायद यही कहते हैं। और यहाँ ये देखें लकड़ियाँ जलाने के लिए जगह बनाई हुई है, चूल्हा सा है कि सर्दी में आप आग भी जला लें और कुछ पका भी लें। तो ये जनाब इनका वही कमरा है जहाँ इन्होंने छोटी छोटी बॉटल्स में कुछ ऑयल्स रखे हुए हैं, कुछ अर्के गुलाब रखा हुआ है। अब हमारी यहाँ से रवानगी का वक्त हुआ चाहता है, हम कुछ और मज़ीद प्लेसेस हैं वहाँ विज़िट करेंगे। यहाँ वादी बनी हबीब के नाम से भी एक मकाम है, वहाँ पर कुछ पुराने खंडरात हैं वो भी लोग देखने जाते हैं, तो आप भी ज़रूर आइए। हेल अल यमन के नाम से भी यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी, कुछ गुलाब के फूलों की तस्वीरें हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमें एक दो जगह पर खिले नज़र आए, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
एक रेस्टोरेंट में जहां हमने लंच किया वहां हमें खूबसूरत गुलाब के फूल खिले नज़र आए, लेकिन उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कैक्टस भी देखे और क्या शानदार हमें बात याद आ गई कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ फूलों का बिस्तर नहीं, उसमें कांटे भी होते हैं। तो जनाब कैक्टस भी थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, उनकी अपनी एक खूबसूरती होती है, फूलों के साथ साथ कांटे भी थे। तो यहाँ पर जो है वो ख़ासे इन लोगों ने खिला रखे थे, फूल भी और दूसरे पौधे भी। तो जनाब कुछ तस्वीरें हैं, इनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हों। शरफ़ क़दीम की जो घर था, फैक्ट्री थी उसकी, कुछ रास्ते की, कुछ फूलों की। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हो सके तो ज़रूर आइए। गुलाबों का मौसम तो गुज़र गया फ़िलहाल इस साल, अब अगले साल अप्रैल में होगा, लेकिन अभी सितंबर बाकी है और जो लोग यहाँ के अनारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं वो यहाँ सितंबर में आके ज़रूर विज़िट करें। हम भी कोशिश करेंगे कि हम सितंबर में विज़िट करें और आपके साथ भी वो एक्सपीरियंस शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।